Hello and welcome, guys. So, this is Dr. Sneha Sharma once again. Last week, we talked about who should take MD Psychiatry. So, in this series of Is It the Right Branch for You, आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक बहुत ही interesting question. That is, what all you should expect from your residency, how your residency is going to be if you're taking MD Psychiatry as a branch. Okay, but before starting, I would like to say sorry for shooting in this awkward position because क्या हुआ Sunday को while going to the hospital, I had an ankle twist और पता नहीं कैसे my fifth metatarsal broke. So I am having a cast on and इसलिए I cannot change my position very frequently. एक जगह बैठना होता है. So I'll be shooting this entire video यहीं पे बैठ के. Hope it's fine. चलो तो फटाफट लेट्स स्टार्ट अबाउट योर रेसिडेंसी. सी, एनी सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट ले लो. जब आप पीजी कर रहे हो, योर एमडी और एमएस व्हाटएवर इट इज, उसमें रेसिडेंसी के फ्यू पार्ट्स होते हैं. पहला इन पेशेंट, दैट इज द वार्ड वर्क. दूसरा आउट पेशेंट यानी कि ओपीडीज देखना. एंड तीसरा विच इज द मोस्ट हेटेड पार्ट, दैट इज नाइट ड्यूटीज. सो आपकी सारी रेसिडेंसी इनमें चली जाती है. और जो फोर्थ चीज होती है ना, फोर्थ पार्ट विच इज द मोस्ट लव्ड पार्ट अबाउट रेसिडेंसी इज पार्टिंग. ओके, बिकॉज आपके पास कहीं ना कहीं आप कैसे भी समय निकाल ही लेते हो पार्टी करने का. सो डोंट वरी अबाउट इट. और साइकाइट्री में तो बेशक यू विल गेट इनफ टाइम टू पार्टी. सो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द इन पेशेंट वर्क. इन पेशेंट यानी कि वार्ड वर्क आपने डेफिनेटली अपने इंटर्नशिप में या अगर आपने एज एन एमओ जॉब किया है तो आपने डेफिनेटली काम किया होगा वार्ड में. उसमें देखो, उसमें यू हैव टू टेक राउंड्स, यू हैव टू फिल द केस शीट्स and you have to do each and everything for the patient if at all you are in a state government college. but अगर आप एक central government college में हो या private setup में हो, so your sisters are there for you. So they'll help you with the drugs disposal, they'll help you with all the sample collection, they help you with putting IV lines, all that. Okay, you only have to take rounds every day, make sure your patient is healthy enough to stay in the hospital. And obviously they will have side effects medicine say, so that all you have to check on daily basis. Like I would give our example. So हमारे हॉस्पिटल में क्या होता था, सो एवरी डे मॉर्निंग वी वुड गो फॉर राउंड्स. ओके, हमारे पास पेशेंट्स डिस्ट्रीब्यूटेड होते थे. So each JR would have like 6, 7, somebody would have 20 patients depending on different wards. Okay, so every day we would go to the ward, we'd see our patients, write notes. Okay, then psychiatry में एक और चीज होती है, that is MSc, mental status examination. So it doesn't change on daily basis, but twice a week at least we used to write MSCs. Okay, एक जो ग्रैंड राउंड्स के लिए, ऑल पेशेंट्स राउंड के लिए MSc होता था, दैट वी वुड डू just a day before the grand round, and another one कहीं भी midway week में we used to do MSc because daily basis पे तो it cannot change ना. Also you have to be available for your patient 24/7. Like imagine आपके ड्यूटी आवर्स खत्म हो गए हैं, आप घर पे चले गए हो and then suddenly your sister calls कि डॉक्टर पेशेंट को ऐसा हो रहा है, पेशेंट इज हैविंग लूज मोशन, पेशेंट इज हैविंग dystonia. So उस time you have to be available to your patients. Okay, wait, डरो मत. नाइट ड्यूटी JRs are there. नाइट ड्यूटी पे always there's somebody to help in these situations. Okay, तुम्हें नहीं जाना होगा वार्ड में, the night duty JR will definitely see to it. Okay, let's talk about the next part, that is OPD. सो ओपीडी में क्या होता है, ओपीडी में बैठ के पेशेंट्स देखने होते हैं. बट सिंस यू आर अ साइकाइट्री JR, सो आपको बैठ के 2 घंटे लंबी हिस्ट्री लेनी पड़ेगी. ओके, हमारी हिस्ट्री ना, मेडिसिन पीडियाट्रिक्स, ओके, उनके भी हिस्ट्री लंबी होती है, बट वी हैव टू टेक एक्सटेंसिव हिस्ट्री. ओके, अब देखो, सिंस जब आप नए नए होगे आपको टाइम लगेगा टू टीज आउट हिस्ट्री. पेशेंट बोलेगा, पेशेंट पार्टी बोलेंगे कि इसका बीपी बढ़ जाता है. अब आप सोचोगे कि हाइपरटेंसिव है वो, आप पूछोगे अच्छा
मेडिसिन चल रही है क्या? एंड देन दे वर लाइक नहीं, ये तो कभी कभी हो जाता है, मार पीट देता है। एंड देन यू गेट टू नो ओके दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट हाइपरटेंशन, they were rather talking about him being aggressive. So that's how you have to develop the skills slowly, है ना, कि कैसे आपने हिस्ट्री निकालनी है उनमें से, ठीक है, बिकॉज अलग अलग लोग आके अलग अलग चीज़ें इररिलेवेंट हिस्ट्री देंगे जिसका कोई मतलब नहीं होगा, बट देन यू विद टाइम यू विल श्योरली गेट टू लर्न कि हाउ हिस्ट्री टेकिंग इज साइकाइट्री में। एंड देन हमारे यहाँ पे सिस्टम थोड़ा ऐसा था कि द जेआर्स वुड टेक हिस्ट्री एंड देन दे वुड गो टू ईदर एसआर्स और कंसल्टेंट्स, एंड देन केस डिस्कस करके दे विल कम टू अ डायग्नोसिस, एंड देन द सीनियर्स वो मेडिसिन प्रेस्क्राइब करते थे। अब बाकी कॉलेजेस में हाउ इज इट, आई एम नॉट वेरी श्योर, so you have to check in your own college. Next thing about OPD timings. So OPD timings also varies according to the hospital. Most hospitals में OPD is up till 4 p.m. right, 9 to 4 या 9 to 5, but हमारे setup में even though we were so many JRs, like 34 JRs in a batch, plus psychologists, plus psychosocial workers, still हमारी OPD like minimum 7 p.m. तक चलती थी। एंड जब बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई, the day there were like 400 plus or 500 plus patients, उस दिन OPD कभी कभी 9, कभी कभी 10 p.m. पे चलती थी। Okay, so that depends on the patient load of your hospital, definitely. बट यू नो वॉट, अगर आप अपने काम को प्यार करते हो ना, इफ़ यू लव द सब्जेक्ट, आपको कभी बुरा नहीं लगेगा इफ़ यू स्पेंड दोज फ्यू आवर्स, फ्यू एक्स्ट्रा आवर्स इन द ओपीडी और इन द वार्ड। आपके पास हमारे साथ तो यूजुअली होता था लाइक 4 बजे तक एडमिशन्स होते थे, ठीक है, बट देयर वर डेज कि जब एडमिशन्स लेट आते थे, कभी 6 o'clock, कभी 7 o'clock और कभी कभी तो 8 o'clock। देयर वर टाइम्स कि जब हम बाहर घूमने गए होते थे एंड देन वी वुड कम एट 8 o'clock, एंड देन पता चल रहा है कि यहाँ देयर वाज एन एडमिशन, हमें किसी ने इन्फॉर्म नहीं किया, सिस्टर्स मिस्ड टू इन्फॉर्म, या हमारा फोन स्विच ऑफ हो गया था और समथिंग हैपेंड एंड वी डिडंट गेट टू नो कि देयर वाज एन एडमिशन व्हिच आई वाज सपोज्ड टू टेक। और उस टाइम पे वी हैड टू रन टू द वार्ड्स, या तो 8 बजे हो, 9 बजे हो, और तब फटाफट हिस्ट्री लेके वी वुड सेंड द गार्डन्स बैक। इट्स ऑल अबाउट योर पैशन अबाउट द फील्ड। आप जितना ज़्यादा प्यार करोगे फील्ड को, उतना ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा आपके लिए काम करना। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, दैट इज नाइट ड्यूटीज। अब नाइट ड्यूटीज पे डिपेंड्स अपॉन हॉस्पिटल। अब हमारे यहाँ तो 34 JR हैं ईच ईयर में। अब एवरी JR गेट्स 1 or maximum 2 ड्यूटीज पर मंथ, ओके, बट बाकी कॉलेजेस में आई डोंट थिंक दिस इज द केस बिकॉज दे हैव लाइक 3 or 4 JRs, तो उनकी लाइक 4 to 5 ड्यूटीज पर मंथ तो आती होगी। बट डोंट वरी, इट्स नॉट लाइक ऑप्स गाइनी की नाइट ड्यूटी, दे रात भर बच्चे पैदा हो रहे हैं, यू हैव टू गो रन टू द वार्ड एंड रन टू द ओटी, ऐसा नहीं होता है। सो डेफिनेटली जब भी कोई इमरजेंसी आएगी यू विल गेट कॉल्स, या पेशेंट की मेडिसिन में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं उनको, दे आर सिक और आईवी पे है, और यू हैव टू ensure sedation, और if patient is suicidal, so in cases में you'll be called to the ward। अब हमारे यहाँ तो ऐसा ही सिस्टम था, राइट, एंड डेफिनेटली वी ऑल हैव वर्क ड्यूरिंग आवर इंटर्नशिप, तो नाइट ड्यूटीज तो ऐसी होती हैं, सो यू कैन स्लीप पीसफुली टिल यू गेट अ कॉल। एंड या तो ड्यूटी हमारे हॉस्पिटल में इट यूज टू बी फ्रॉम 5 p.m. to 7-7:30 a.m. the next day, ओके, एंड देयर इज नो ऑफ। मोस्टली एमडी में तो कोई नाइट ड्यूटी ऑफ मिलता नहीं है, सो हमारे इस सेंटर में देयर वाज नो ऑफ पोस्ट अ नाइट ड्यूटी, सो वी हैड टू वर्क बिकॉज इतना ज़्यादा हेक्टिक नहीं होता था ना, नॉट लाइक ऑब्स गाइनी के या सर्जरी के रात भर आप ओटी में खड़े रहे हो एंड देन द नेक्स्ट डे यू नीड ऑफ, सो वी यूज्ड टू स्लीप लाइक 5 hours, 4-5 hours sometimes, so that was okay। रेसिडेंसी में बहुत ज़्यादा, इससे ज़्यादा क्या चाहिए आपको? इट्स अ वेरी चिल लाइफ, लाइक अकॉर्डिंग टू लाइक रेसिडेंसी 4-5 hours of sleep is fine during night duties, okay? पता है,
I can't tell you, I can't express how happy I am to talk like this again, all over again after so many years. I miss this so much. I just love talking also ना, तभी मैंने साइकाइट्री लिया पूरे टाइम पेशेंट्स के साथ भी कीप टॉकिंग बच 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 करके. बट आई रियली लव दिस. लेट्स गेट सीरियस. अभी हमने बात कर ली ओपीडी, आईपीडी, नाइट ड्यूटीज. नेक्स्ट थिंग है academics. Okay, so academics is also very important part. During residencies आपने assignments करने होते हैं, presentations करने होते हैं और thesis तो होता ही है. अब थीसिस के लिए अब आपके कॉलेज पे डिपेंड करता है, आपको 3 साल देंगे कि 2 साल देंगे, वो कि 1 साल में निपटा देंगे. बट जनरली लाइक पीपल गेट 3 years और 2 years. ठीक है, तो वो आपको एक गाइड मिलते हैं एंड जिनके साथ डिस्कस करके आप अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट ढूंढते हो और फिर उस पे यू स्टार्ट योर रिसर्च. ओके, सो दैट इज अ टोटली डिफरेंट टॉपिक विच इज नॉट सपोज टू बी डिस्कस्ड हियर. अभी हम आगे बढ़ते हैं. विच इज़ बाकी का लाइक प्रेजेंटेशन. हमारे वहाँ पे सेमिनार्स होते थे, हमारे वहाँ पे तो हमारे यहाँ पे सेमिनार्स होते थे और सीसीज होते थे, यानी कि केस डिस्कशंस होते थे, लाइक वेरी डिटेल्ड केस डिस्कशन. और साथ साथ कभी जर्नल क्लब्स हो जाते थे विच यूज टू बी अ प्रैक्टिकल सेशन. ठीक है, सो ये रहता है. अगर आप लाइक निमहांस जैसे कॉलेज जाओगे सो वहाँ पे academics has much more weightage than patient care. I think I have pretty much covered everything. अगर कुछ रह जाता है we'll cover it in the next part, जिसमें हम डिस्कस करेंगे about the future career options after you finish MD Psychiatry. Okay, so आज के लिए इतना ही. Let's meet again next week or so. Okay, bye.